سائٹ ایریا لال مسجد کے قریب گتے کی فیکٹری میں آگ لگنے کا واقعہ۔ آگ پر قابو پانے کے لیے فائر بریگیڈ کی 6 سے زائد گاڑیاں امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق 3 منزلہ عمارت میں وافر مقدار میں گتے کے رول موجود ہیں۔ شاہزیب حسین سے بات کریں گے۔ شاہزیب بتائیے گا کتنی دیر ہو گئی ہے آگ لگے ہوئے اور کیا کہا جا رہا ہے کب تک اس پر قابو پایا جائے گا؟ شاہزیب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ابھی کے یہ تازہ مناظر ہیں جو آپ سٹی 21 کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ جل کر خاکستر ہو گئی ہے یہ فیکٹری، یہاں پر سامان جو لاکھوں کا سامان جو ہے وہ جل گیا ہے۔ بات کریں گے شاہزیب حسین سے۔ شاہزیب بتائیے گا کیا کہنا ہے فائر بریگیڈ حکام کا، کب تک آگ پر قابو پا لیا جائے گا؟ 9:10 پر ان کو اس آگ لگنے کی اطلاع موصول ہوئی، جس کے بعد انہوں نے بروقت یہاں پر پہنچ کر آگ پر قابو پانے کے لیے ریسکیو آپریشن شروع کیا۔ یہ سائٹ ایریا ہے اور جو ہے بتایا جاتا ہے کہ جی سی ٹی کالج کے قریب ہی یہ فیکٹری واقع ہے جہاں پر آگ لگی ہے۔ اس فیکٹری میں جو ہے گتے اور دھاگے کا کام جو ہے کیا جاتا تھا اور اس وقت جو ہے وافر مقدار میں گتے کے رول جو ہیں وہ اس کمپنی کی عمارت میں موجود ہیں۔ میرا کیمرہ مین حارث اگر آپ کو دکھائے تو یہ 3 منزلہ عمارت ہے جس پر آگ لگی اور اس وقت جو ہے امدادی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ رضاکار جو ہے موجود ہیں جو کہ امدادی کارروائیوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ واٹر ٹینکر بھی جو ہے مختلف ہائیڈرنٹ سے جو ہے طلب کر لیے گئے ہیں اور یہاں پر جو قریبی جو ہائیڈرنٹس ہیں اس پر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی تھی۔ تقریباً اس آگ کو لگے ہوئے 3 گھنٹے سے زائد کا وقت بیت چکا ہے، لیکن عمارت کے اندر دھواں ہونے کی وجہ سے امدادی کارروائیوں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جو یہاں کے شاہد ہیں ان کی جانب سے بتایا گیا کہ 8:30 بجے کے قریب آگ لگی اور پہل جو ہے انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے آگ پر قابو پانے کی کوشش کی۔ اطراف کی جو کمپنیز ہیں ان کے پاس جو فائر جس طریقے سے دیکھا جاتا ہے کہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے جو بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں تو برابر والی عمارت میں وہ موجود تھی، اس کی مدد سے جو ہے یہاں پر آگ پر قابو پانے کی کوشش کی، لیکن ان کی محنت جو ہے بےسود ثابت رہی، جس کے بعد فائر بریگیڈ کو اطلاع موصول ہوئی۔ اب یہاں پر جو ہے 6 سے زائد فائر ٹینڈر موجود ہیں، فلاحی اداروں کے رضاکار موجود ہیں، کمپنی کے ملازمین موجود ہیں جو کہ آگ پر قابو پانے میں حصہ لے رہے ہیں، ریسکیو آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس فیکٹری میں جو گتے ہیں اس کو کرین کے ذریعے جو گتے کے رولز ہیں ان کو باہر نکالا جا رہا ہے۔ میرے کیمرہ مین حارث اگر آپ کو اس طرف دکھائیں تو یہ رولز ہیں جو اندر موجود تھے جس میں آگ لگی اور اس نے دیکھتے پوری 3 منزلہ عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب بھی جو ہے یہاں پر کرین کے ذریعے جو رولز ہیں وہ باہر نکالے جا رہے ہیں، اس میں بھی جو ہے آگ لگی ہوئی نظر آ رہی ہے، جبکہ اس آگ لگنے کے واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے، جبکہ ساتھ جو آگ لگنے کی جو ابتدائی وجہ ہوتی ہے وہ بھی جو ہے اب تک معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے کہ جو آگ لگنے کی جو وجہ ہے وہ جب اس وقت یہاں پر کولنگ کا عمل مکمل کر لیا جائے گا تو اس کی وجوہات جو ہے پتہ لگایا جائے گا کہ آگ لگنے کی کیا وجہ تھی۔ تاہم جو ہمارے شاہدین سے جو بات ہوئی ہے ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ وافر مقدار میں اندر گتے کا جو ہے مال موجود ہے اور اندر جو ہے بڑی ایک ہال نما جو ہے عمارت کے اندر ہال بنا ہوا ہے، اس کے اندر بڑی وافر مقدار میں گتے ہیں جس میں آگ لگی تھی، جس کے بعد شہر بھر کے جو ہائیڈرنٹس ہیں اس پر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی تھی۔ اب جو ہے 3 گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے، آگ پر قابو پانے کی مسلسل جدوجہد کی جا رہی ہے، جبکہ ساتھ فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے کہ آگ کو جو ہے کنٹرول میں کر لیا ہے، مزید پھیلنے سے روک دیا ہے اور اس وقت جو ہے امدادی کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ جی شاہزیب تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ 3 منزلہ عمارت ہے، کتنے حصے میں اس کی آگ لگی ہے؟ ساتھ یہ بتائیے گا کہ عمارت کو مکمل طور پر خالی کرا لیا گیا ہے یا عمارت خالی ہی تھی آگ کے وقت؟ جی بالکل، دیکھیں آتش زدگی کے وقت آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا تو عمارت میں جو یہاں پر کام کرنے والے ورکرز ہیں وہ موجود تھے، تو انہوں نے پہلے اپنی مدد آپ کے تحت آگ پر قابو پانے کی کوشش کی، جس کے بعد نہیں بجھی تو انہوں نے فائر بریگیڈ کو اطلاع دی۔ فائر بریگیڈ کا عملہ یہاں پر پہنچا اور انہوں نے جو ہے یہاں پر ریسکیو آپریشن جو ہے شروع کیا اور جو اندر ملازمین کام کرتے تھے، جو ورکرز تھے، ان کو جو ہے فوری طور پر باہر نکالا تاکہ ان کی جانوں کو محفوظ بنایا جا سکے۔ تاہم اس آگ لگنے کے واقعے میں کوئی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس رقبے کے حوالے سے تو یہ 2000 گز سے زائد کے رقبے پر جو ہے یہ عمارت پھیلی ہوئی ہے، جس کے اندر وافر مقدار میں گتے کا مال موجود ہے اور ساتھ ہی ساتھ بتایا جاتا ہے
धागा भी जो है इस कंपनी में मौजूद है जो यहाँ पर स्टोर किया हुआ था। और साथ ही जब आग लगने की इत्तला मौसूल हुई तो फायर ब्रिगेड का जो अमला है वो 10 मिनट के बाद ही यहाँ पर पहुँच चुका था। फायर ब्रिगेड हुक्काम का कहना है कि 10 जो आग लगी है उसकी इत्तला जो है देर से मौसूल हुई है, क्योंकि पहले उन्होंने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पाने की कोशिश की थी, लेकिन आग ने जो है आग उनके शिद्दत से बाहर हो चुकी थी जब उन्होंने फायर ब्रिगेड को इत्तला दी। इस वक्त भी जो है यहाँ पर फायर ब्रिगेड का अमला आ रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा हुआ है। यहाँ पर जो सर्विस रेस्क्यू टीम है 1122 उनका भी अमला यहाँ पर मौजूद है जो इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहा है। दूर दूर तक जो है आग के धुआं जो है फैलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि फायर ब्रिगेड हुक्काम का कहना है कि आग पर जो है जल्द काबू पा लिया जाएगा और उसके बाद आग लगने की जो वजह है वो मालूम हो सकेगी। जी शाहजेब, ये भी बताइएगा कि फायर सेफ्टी आलात क्या इस फैक्ट्री के अंदर मौजूद थे या ये फैक्ट्री भी उन्हीं हज़ारों दर्जनों फैक्ट्रियों में मौजूद है कराची की जिसमें फायर सेफ्टी के आलात का निशान तक मौजूद नहीं है? जी बिल्कुल, देखें ये कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं हमने देखा है तो यहाँ के अतराफ़ की जो फैक्ट्रीज़ हैं उनके पास आग बुझाने के जो आलात होते हैं वो दिखाई दिए हैं, लेकिन इस फैक्ट्री में जिस तरीके से आग लगी और उसके बाद आग की शिद्दत मज़ीद बढ़ी तो उसमें ये देखा जा रहा है कि इस कंपनी में आग बुझाने के आलात मौजूद थे या नहीं थे, तो ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। इस वक्त जो है यहाँ पर आग पर काबू पाने की मुसलसल जद्दोजहद की जा रही है, जबकि फायर ब्रिगेड हुक्काम का कहना है कि अगर इस फैक्ट्री में आग बुझाने के आलात ना हुए तो उनके ऊपर जो है जुर्माना भी आयद किया जाएगा, जबकि साथ ही साथ इंक्वायरी भी जो है की जाएगी। जबकि यहाँ पर अब तक जो है मौसूल हुई है बात अगर देखे जाए तो यहाँ पर जो फैक्ट्री है वो 3 मंजिला इमारत है जिसमें ये फैक्ट्री बनाई गई है और 2000 के रकबे पर ये 2000 से ज़ायद जो गज़ है उससे ज़ायद रकबे पर फैली हुई फैक्ट्री है जिसमें अब भी जो है आग के शोले मौजूद हैं जिस पर काबू पाने की मुसलसल जद्दोजहद की जा रही है। मुसलसल कोशिश की जा रही है। ठीक है शाहजेब, आपका शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। इलाकाई मसाइल की बात करें, PS 101 के इलाके शांति नगर में मसाइल ही मसाइल है। सीवरेज का नाकिस निज़ाम, जगह जगह कचरे के ढेर है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे फरहान खान से, बताइएगा। जी बिल्कुल, इंतखाबात की गहमा गहमी जो है वो उरूज पे है, लेकिन लोगों के मसाइल जो है वो ताहाल हल तलब है। इस वक्त जो है सूबाई असम्बली का हल्का PS 101 शांति नगर के इलाके के अंदर मौजूद हूँ। अगर यहाँ पर मैं मसाइल की बात करूँ तो एक लंबी फहरिस्त है। जगह जगह कचरे के ढेर, गैस की अदम दस्तियाबी और गटरों से बहता पानी यहाँ पर जो है वो मकीनों के लिए शदीद अजियत का बाइस बना हुआ है। इस वक्त जो हमारे साथ इलाका मकीन भी मौजूद है, इनसे भी तफसीलात लेते हैं। मुझे बताइएगा सर, क्या क्या यहाँ पे इलाके में मसाइल? यहाँ पे जी बहुत सारे मसाइल हैं भाई। ये तो जो पार्टी भी आती हुई यहाँ काम तो नहीं करती है, बिल्कुल पैसा खा जाते हैं। ये देखो रोडों के हाल देखो, ये गलियों का हाल देखो, क्या हाल है, गटर के हाल देखो, क्या क्या हो रहा है। ये देखो पानी सारा जा रहा है, रास्ता नहीं है, स्कूल है साथ में, बच्चे जा रहे हैं, नमाजी आदमी जा रहे हैं, गटर का पानी बह रहा है, कोई पूछने वाला तो नहीं, यहाँ पे कोई नहीं आता है। इस वक्त जो हमारे साथ कुछ और इलाका मकीन भी है, उनसे भी तफसीलात देते हैं। मुझे बताइएगा यहाँ पे गैस की क्या है? गैस तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। गैस तो यानी कि आता ही नहीं, पूरा दिन नहीं आता, और क्या नाम है बिल इतने आ रहे हैं। गैस पूरा जो है महीना नहीं आता है तो एक आधे घंटे के लिए आता है, वो भी मशीन लगाओगे तो तेज़ चलेगा, वरना फिर बस यही होता है। मुझे बताइएगा कि जो है वो इलाके में हमने देखा है कि हर जगह जो है वो बैनर्स और झंडे लगे हुए हैं। वोट लेने के लिए तो वो आ जाते हैं, लेकिन क्या मसाइल हल करने के लिए आते हैं इलाके में? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ ये बैनर लग गया, ये लग गया, बस बात ख़त्म। वोट ले लेंगे और फिर उसके बाद आप कौन हम कौन। जी बिल्कुल, इस वक्त जो हमारे साथ इलाका मकीन भी मौजूद है, इनसे भी आपने तफसीलात सुनी कि इलाके में जो वो गैस जो वो नायाब हुई है, जबकि जगह जगह जो है गली के कोनों पे कचरों के ढेर और बिजली की लोड शेडिंग भी जो है वो इनको शदीद परेशानी का बाइस बनी हुई है। जबकि अगर मैं इलाके में वोटर्स की तादाद के हवाले से बात करूँ तो 2 लाख से ज़ायद वोटर्स पर मुश्तमिल ये PS 101 है, लेकिन यहाँ पर लोगों के मसाइल हल तलब है। जी आगे बढ़े, आपको बताएं कि NA 238 के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 17 के मकीन बल्दियाती नुमाइंदों से नाराज़ हैं। कहते हैं कि आम इंतखाबात में MKM पाकिस्तान के नुमाइंदों को मुंतखब कराएंगे। अयाज राना की रिपोर्ट। मैं मौजूद हूँ NA 238 का जो ये हल्का है, गुलशन इकबाल है, ब्लॉक 17 है और ब्लॉक जो 14 है वो भी यहाँ लगता है। बेंगलोर्स भी मौजूद हैं, यहाँ पे बिल्डिंग्स भी हैं, कमर्शियल यहाँ पे एरिया भी मौजूद है। लेकिन यहाँ के क्या मसाइल हैं, ज़रा हम यहाँ के इलाका मकीनों से जानने की कोशिश करते हैं। सर आप ये बताइएगा कि
क्या मसला है? सड़कें यहाँ मौजूद हैं, निज़ाम भी अच्छा नज़र आ रहा है, तो आप लोगों के साथ क्या बुनियादी मसला है? लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ जो मसला हमारे साथ आ रहा है ना, वो एक तो रोडों का मसला है, पानी का, सीवरेज का। सुबह गैस नहीं होती है पूरे दिन, बाज़ दिन तो पूरे दिन नहीं होती है, अगर होती है तो 3 घंटे 4 घंटे। बिजली का ये निज़ाम पहले से कुछ बेहतर है ज़रूर, मगर बेहतर है। बाकी सफाई का कोई सही इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है यहाँ। अब देखें, दुआ कर रहे हैं कि अब इलेक्शन हो जाएं और हमारे 238 से खड़े हुए हैं सादिक इफ्तिखार भाई, इंशाल्लाह ये कामयाब हुए तो काम होगा। मोहित भाई को तो सभी जानते हैं, मोहित भाई ने बहुत काम किया है यहाँ। क्या समझते हैं आप लोगों के जो मसाइल हैं वो एक बल्दियाती नौयत के मसाइल हैं खासकर, तो आप क्या समझते हैं कि ये आपके MPA ये मसाइल हल कर पाएंगे, आएंगे तो? देखिए, हमेशा इधर हमारे जितने MPS थे और इधर पानी का मसला था, MPA के फंड के जो कहीं और के फंड थे वो इलाके इधर उन्होंने यूटिलाइज करे। इलाकों में चाहे वो पॉश एरिया हो या वो बज़ाफ़ात के इलाके हों, चाहे वो गुंजान आबादी के इलाके हों, चाहे वो इस तरीके से डेवलप जिनको हम कहते हैं शहरी इलाका, जिसको सही मायनों में समझा जाता है, गुलशन उसमें माना जाता है, और वहाँ पे भी वही बुनियादी मसले मौजूद हैं। जी, NA 243 के अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। बाबा आइलैंड के रिहायशी कहते हैं कि वोट लेने के बाद काम कराने के दावेदारों ने हमेशा धोखा दिया है। इस पर मजीद बात करेंगे जुनैद जावेद से, बताइएगा। बिल्कुल, हल्का NA 243 बाबा आइलैंड पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के करवाए गए काम से जो है वो यहाँ की आवाम सख्त नाराज़ नज़र आ रही है। ये वो जजीरा है जहाँ पर ना पीने का पानी है, ना गैस है, ना बिजली है, ना तालीम की कोई सहूलियात है, ना ही सेहत के हवाले से कोई जो है यहाँ पर इक़दामात किए गए हैं। यहाँ के कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं जो कि मुकामी लोग हैं। वोट तो हमारी दिल की मर्जी है, किसी को भी दे, लेकिन कादिर पटेल को नहीं देंगे। कादिर पटेल हमारे लिए कुछ भी नहीं करता है। अभी ये पूरी आवाम से पूछो, महीने के 1500 एक बंदे का देते हैं, इसके अलावा बिजली नहीं है, घर में हजारों परेशानी है, बच्चे हैं छोटे छोटे, बीमार है, मैं दिल की मरीज हूँ, मेरा शोहर दिल का मरीज है, हमें पंखे की ज़रूरत है क्योंकि और ना हमें गैस मिलता है, लकड़ियाँ जला जला के अंधे हो गए हैं। जी बिल्कुल, ये तो बिजली और गैस की जो परेशानी है, ये तो बुनियादी जो है वो मसला है आवाम का यहाँ की। यहाँ पर एक बुजुर्ग शहरी भी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। ये बताएं कि आप यहाँ पर रहते हैं, तो अगर कोई शख्स बीमार हो जाए, खुदा न खास्ता आपकी तबीयत रात के वक्त ख़राब हो जाए, तो आप कहाँ जाएंगे? हम तो यहाँ पहले लॉन्च के लिए रुक जाते हैं, लॉन्च का बंदोबस्त हो तो मरीज जाए। कई मरीज है जो जाते जाते रास्ते में बीच में दम तोड़ दिए हैं। हमारे लिए कोई सहूलत ऐसी नहीं है। अच्छा, यहाँ पर लाजिम सी बात है, आपके बच्चे भी हैं और वो कहाँ पर पढ़ते कहाँ हैं? स्कूल तो है ही नहीं। बेटा, बोलने की जो बात ये है कि देखो, हम लोग का स्कूल है जैसी नहीं है, उसमें 5 क्लास से 6 क्लास वाले जो मास्टर उस्ताद है खुद फेल है, तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? ये लोग खुद तालीम नहीं दे रहे, क्योंकि हम लोग तालीम मिल जाएगी तो हम लोग कहाँ से कहाँ निकल जाएगा। जी बिल्कुल, तालीम तो बुनियादी हक है और हर शहरी का हक है कि हुकूमत जो है वो इनको तालीम फराहम करे। ये बाबा आइलैंड की अगर बात करें तो बाबा आइलैंड वो आइलैंड है जहाँ पर ज़मीनी रास्ता कोई नहीं है। यहाँ पर जो है समंदर के ज़रिए ही, कश्ती के ज़रिए, लॉन्च के ज़रिए जो है लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जो है रहते हैं। जी, MQM पाकिस्तान ने आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए कमर कस ली है। सेनेटर फैसल सब्जवारी कहते हैं कि हमारे पास अंधी कमाई नहीं है। मेयर कराची तरक्याती कामों की आड़ में पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। हम झूठ की सियासत से गुरेज करेंगे। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट। MQM पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम शाह फैसल टाउन में अवामी इज्तिमा का इनेकाद किया गया। कौमी और सूबाई असम्बली के नामजद उम्मीदवारों समेत अराकीन राब्ता कमेटी और कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सेनेटर फैसल सब्जवारी का कहना था कि हम झूठ की सियासत से गुरेज करेंगे और गजा के नाम पे लोगों को जमा करके वोट नहीं मांगेंगे। MQM की काविशों से कराची की 73 लाख लापता आबादी बाजियाब हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, कराची की आबादी को जितना होना चाहिए या जितनी है उतनी तो नहीं गिनी गई, लेकिन फिर भी पूरे सूबे में 2 करोड़ प्लस का किसी ने अगर क्रॉस करवाया तो 73 लाख आबादी को बाजियाब करवा के आपकी MQM पाकिस्तान ने करवाया। NA 232 की उम्मीदवार आसिया इसाक बोली कि हम पर तनकीद के नश्तर चलाने वाले एक मॉडल यूसी नहीं दे सके। अगर कोई सियासी जमात कराची का मुकदमा लड़ रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ MQM है। MQM पाकिस्तान वाहिद सियासी जमात है जिसका स्टेक कराची और हैदराबाद के अंदर है और अर्बन सिंध के अंदर है। अगर कोई सियासी जमात कराची हैदराबाद का मुकदमा लड़ रही है और जीत रही है
तो वो कोई और नहीं है मेरे बहनों और भाइयों और मेरे बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी और मेरी मुतवस्सत तबके से ताल्लुक़ रखने वाली MQM पाकिस्तान है। सूबाई असेंबली के नामजद उम्मीदवार मोहम्मद अबू बकर ने शाह फैसल कॉलोनी में 28 जनवरी को जलसा करने का ऐलान किया। कहा कि ये जमात कल भी इस शहर की वारिस थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। आम इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगे। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। कराची में आम इंतखाबात की मुहिम चलाने में पीपल्स पार्टी सबसे आगे है। आसिफा भुट्टो जरदारी आज रैली की क़यादत करेंगी, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी 5 फरवरी को कराची का दौरा करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी कहते हैं कि शहर में सबसे बड़ी इंतखाबी मुहिम पीपल्स पार्टी की चल रही है। आज इस जमाली से मज़ीद जानेंगे, बताइएगा। इलेक्शन की गहमा गहमी है और कराची में वैसे तो तमाम सियासी जमातों के उम्मीदवार मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो इलेक्शन की गहमा गहमी है वो बड़े पैमाने पे नज़र आ रही है। बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी इलेक्शन मुहिम चला रही हैं। कल चनेसर गोट में ही थी, आज केमाड़ी में, फिर कल लियारी में उनके जलसे हैं, रैलियां हैं। आसिफ जरदारी साहब खुद कल हब में कोई जलसा से खिताब करने वाले हैं। इस तरह लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची में बड़े पैमाने पे अपना इंतखाबी मुहिम चला रही है। पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न के सदर और ख़ुद भी उम्मीदवार हैं PS 105 के सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सईद साहब, आपने कहा भी सही कि दीगर जमातें मुहिम नहीं चला रही हैं, आपकी मुहिम सबसे तेज़ है, तो इसका नतीजा भी मिलेगा ज़्यादा सीटों की सूरत में? नहीं, इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि कराची में इस वक्त जो रिज़ल्ट आएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें लीडिंग पार्टी होगी। और मेरे लिए तो ये बात भी बहुत बायस तक़वियत है कि जो मुखालिफ जमातें हैं वो इस बात पे मजबूर हुई हैं कि आपस में इत्तेहाद करें, पीपल्स पार्टी का मुकाबला करें। और पीपल्स पार्टी इस वक्त वाहिद जमात है जो किसी जमात को इत्तेहाद के लिए नहीं कह रही है। एक नशिस्त हमने वो अवैस नूरानी साहब खड़े हुए हैं उनके लिए खाली की, लेकिन वो भी एज सच कोई हमारा अलाइंस उस जमात के साथ नहीं हुआ। और जो कैंपेन शहर में चल रही है उसमें आप खुद पूरे शहर में जाते हैं, हर हल्के में जाते हैं, आपको पीपल्स पार्टी शहर में हर जगह नज़र आ रही है, जबकि जो दीगर जमातें हैं वो उनकी सूरत हाल ये नहीं है। मुमकिन है किसी हल्के में कोई जमात, किसी हल्के में कोई जमात हो, लेकिन जिस तरह से माजी में दीगर जमातें कराची में अपनी मुहिम चलाती थी, इस दफ़ा उसकी बहुत आपको कमी नज़र आएगी। बीबी आसिफा के जलसे हैं, दौरे हैं, कराची के दीगर मकामात पर भी होंगे? जी, आज भी गालिबन वो किसी एक ज़िले में जाएंगी, कल भी उनको किसी इलाके में जाना है और पिछले 2 दिन भी उन्होंने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गुजारे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा के भी जाने से मुख्तलिफ इलाकों में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को फ़ायदा होगा। अच्छा, 5 फरवरी को यहाँ चेयरमैन बिलावल भुट्टो का भी जलसा है, तो वो बड़े पैमाने पर जलसे की तैयारियाँ हैं या इलाकाई वो रैली होगी? नहीं, जलसा उनका नहीं है, वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेंगे और प्लान ये है कि वो कराची के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जाएँ, लेकिन अब देखते हैं कि कितना वक्त उसके लिए दरकार होगा। वो साउथ से शुरू करेंगे, केमाड़ी में भी जाएंगे, फिर वेस्ट में से भी जाएंगे, फिर सेंट्रल से गुजरेंगे, फिर वहाँ से ईस्ट में जाएंगे, फिर ईस्ट से होते हुए कुरंगी को टच करेंगे, कुरंगी से टच करके वो मलिर चले जाएंगे। तो कोशिश होगी कि तमाम ज़िलों को वो टच करें और मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेंगे, वहाँ पर जहाँ कारकुन इकट्ठे होंगे उनसे खिताबी करेंगे। सुना आपने, ये पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे सईद गनी साहब, जिन्होंने बताया कि 5 फरवरी को बिलावल भुट्टो जरदारी का एक बहुत बड़ा दौरा होगा और कराची के तमाम अजला से वो गुजरेंगे रैलियों की सूरत में। आसिफा भुट्टो जरदारी के दौरे भी जारी है और पीपल्स पार्टी की बड़ी गहमा गहमी किस्म की इंतखाबी मुहिम भी जारी है। और सईद गनी का कहना था कि इस वक्त तमाम सियासी जमातों से इंतखाबी मुहिम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चल रही है। NA 233 लांढी एरिया में गंदे पानी ने इलाका मकीनों के लिए मुश्किलात पैदा कर दी। यूसी के वाइस चेयरमैन सज्जाद शाह कहते हैं कि नाला ओवरफ्लो होने से गटर उबल पड़ते हैं, जल्द ही नाला साफ कराएंगे। मजीद बताएंगे खुर्शीद रहमानी। तो मौजूद हैं NA 233 में और लांडी टाउन एरिया में मौजूद हैं। यहाँ सफाई सुथराई की नाक़िस सूरत हाल है और जिस गली में हम मौजूद हैं यहाँ सीवरेज का पानी इतना ज़्यादा है कि यहाँ की अतराफ़ की गलियाँ भी सीवरेज के पानी से भरी हुई। मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं वो सीवरेज का पानी है जिसकी वजह से इस इलाके के लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। और सामने ही एक मस्जिद है और मदरसा है जहाँ पर नन्हे तालिब इल्म जो मदरसा पढ़ने जाते हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बल्कि जब वो क्रॉस करते हैं तो कई नन्हे मासूम
बच्चे यहाँ गिर जाते हैं और ये खासा देरीना मसला है जो हल होने को नहीं आ रहा। इस वक्त मेरे साथ इस इलाके के वाइस चेयरमैन मौजूद है सैयद सज्जाद शाह, उनसे गुफ्तगू करेंगे। भाई ये मसला अल्लाह का शुक्र है कि ये हम पहली दफ़ा यूसी के अंदर हमने विन किया है और ये 35 सालों से मुख्तलिफ लोगों के पास यूसी थी, कोई पुरसना हाल नहीं था इसका। और हमारा सबसे बड़ा मसला है कि मेन नाले 1965 के बने हुए हैं, अयूब खान के टाइम के नाले थे, वो नाले अवर हो गए। अब कल भी हमने मशीनें लगवाई हैं पर उसका हल नहीं है, वक्ती तौर पे हो जाता है, जुम्मे को भर जाता है। हमारा जामा मस्जिद नूरानी इलाके की मस्जिद है, अब ये NA 233 के उम्मीदवार अब्दुल जमील खान साहब का हमने विज़िट करवाया है और ये लाइनें पास करवाई हैं। शाह साहब, इस सारे सूरत में मेयर कराची का कोई विज़िट करवाया या ये उनसे कोई बात हुई इस सारे मसले को हल करने के लिए? सर हमारा मसला ये है कि हम बैठे हुए कोरंगी में, जीते हुए लांडी में। हमारे साथ जो प्रॉब्लम है 3 यूसियाँ 8, 9, 10 ये साबका कोरंगी की यूसियाँ आएंगी जो इसको लांडी में फेंक दी गई हैं। और अब हमारा प्रॉब्लम है एक्सचेंज से जो बात करते हैं बोलते हैं कोरंगी वालों के पास जाओ, और कोरंगी से बात करते हैं वो बोलते हैं यार आप लांडी से। इनका शिकवा है कि इन्हें वाफिर मिकदार में सीवरेज के निज़ाम के लिए ढक्कन दस्तियाब इनको मिलने चाहिए ताकि इस इलाके के सीवरेज का जो मसला है वो हल हो सके और इस इलाके के जो आवाम है उनको मसाइल से छुटकारा मिल सके। जी, अहम खबर शामिल करेंगे नर्सिंग इंस्टीट्यूट को ठिकाने लगाने की मनसूबाबंदी। KIHT में कायम नर्सिंग इंस्टीट्यूट को मेडिकल स्टोर के मालिक को सुपुर्द करने की कोशिश शुरू कर दी गई है। बात करेंगे राबेल अशरफ से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए नौ तामीर शुदा नर्सिंग इंस्टीट्यूट इफ्तिताह से पहले जो है वो ठिकाने लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। नर्सिंग इंस्टीट्यूट इमराज कल्ब के शहरी इदारे के तहत जो है वो तामीर किया गया है। इंस्टीट्यूट 30 लाख रुपए सालाना किराए पर देने की जो है वो मनसूबा बंदी जो है मुकम्मल की गई है। KMC हुक्काम का इंस्टीट्यूट मेडिकल स्टोर के मालिक को देने के लिए जो है वो दबाव भी दिया जा रहा है। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज एक खुद मुख्तार इदारा है। KIHT में KMC के किसी डायरेक्टर का कोई किरदार नहीं है। कवानीन के मुताबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बराह रास्त मेयर को जो है वो जवाबदेह है। KIHT में नर्सिंग इंस्टीट्यूट 49 करोड़ की लागत से जो है वो तैयार हुआ है। शहर के 1000 नौजवान जो है इंस्टीट्यूट से नर्सिंग की जो है वो तालीम हासिल कर सकते हैं, जबकि इंस्टीट्यूट को सूबाई, विफाकी और WHO से जो है वो माली इमदाद भी जो है वो मुतवक्के है। जबकि ज़राए के मुताबिक निजी इदारे को देने से फीसों की मद में सालाना जो है वो करोड़ों का रुपए का नुकसान भी होगा। जी ठीक है राबेल, अभी आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। बच्चों को जिंदगी भर की माजूरी से बचाने वाले पोलियो वर्कर्स के लिए रंगारंग प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। कोरंगी 5 नंबर के मॉडल पार्क में पोलियो वर्कर्स की बड़ी तादाद अपने अहले खाना के साथ शरीक हैं। मजीद बताएंगी राबेल अशरफ। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरंगी नंबर 5 मॉडल पार्क में, जहाँ पर पोलियो वर्कर्स के नाम जो है वो एक रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। हमारे साथ कम्युनिकेशन ऑफिसर मौजूद हैं, इनसे थोड़ी सी तफसीलात लेते हैं। सर मुझे बताइएगा, ये पोलियो वर्कर्स के नाम एक रंगारंग तकरीब मुनाकिद की गई है, क्या मैसेज देना चाहेंगे इसकी बदौलत आप लोग? इसमें हमने सिर्फ कोशिश ये की है क्योंकि पोलियो एक वर्कर जो हैं वो फील्ड में बुरे हालात में, मसाइल में, मौसमी हालात जो भी हैं जिसमें वो काम करते रहते हैं और अपनी ड्यूटी बखूबी सर अंजाम दे रहे होते हैं। और आपको लोगों को पता भी है कि बहुत सारी शहादतें तक दे चुके हैं पोलियो वर्कर्स। तो ये एक प्रोग्राम जस्ट इसी सोच पे ही डिज़ाइन किया गया था कि एक दिन निकाला जाए बगैर किसी कोई अप्रिसिएशन अवार्ड या कोई ऐसी चीज़ के बगैर नहीं, बस वो दिन उनके साथ गुजारा जाए, उनकी उन एक्टिविटीज़ को, उनकी उन कुर्बानियों को, उनकी उन मेहनतों को सराहा जाए। ये हमने पोलियो वर्कर्स और उनकी फैमिलीज़, उनको यही था कि पोलियो वर्कर्स अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ आएँ और इस पार्क में राइड्स हैं, बाकी जो भी चीज़ें हैं वो एंजॉय करें और पोलियो वाले काम से हट के एक दिन वो एक एंजॉय कर सकें उसी चीज़ को। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ कम्युनिकेशन ऑफिसर मौजूद है, उनका यही कहना है कि पोलियो वर्कर्स के लिए दिन जो है वो आज का मुकर्रर किया गया है ताकि वो जो है वो खूब एंजॉय कर सके, उनको ये मालूम हो सके कि एक ऐसा भी दिन है कि जिस दिन आप लोगों की जान बचाने के लिए जगह जगह गली गली लोगों के घरों को खटखटाते हैं कि पोलियो के कतरे पी लें, लेकिन आज उनके लिए भी जो एक दिन बनाया गया है, एक दिन रखा गया है ताकि वो खूब एंजॉय कर सके इस दिन को। अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ पर पोलियो वर्कर्स मौजूद हैं और इस रंगारंग तकरीब को जो है वो खूब एंजॉय कर रहे हैं। जी, इंटरबोर्ड कराची के इंटरमीडिएट के बदतरीन नताइज के खिलाफ मरकजी मुस्लिम लीग शोबा तलबा का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज जारी है। एहतजाज में तलबा और वालिदैन की बड़ी तादाद शामिल है। आपको बताते चलें कि इंटरमीडिएट के बदतरीन नताइज के खिलाफ मरकजी मुस्लिम लीग शोबा तलबा का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज जारी है। एहतजाज में तलबा और वालिदैन की बड़ी तादाद शामिल है। 10 रोज से ज़्यादा हो गए हैं तलबा एहतजाज पर हैं, सड़कों पर हैं। और इस पर मजीद बात करने के लिए आयमा खान हमारे साथ मौजूद हैं। आयमा, अपडेट कीजिएगा, क्या मुतालबात हैं तलबा के और उनके वालिदैन के?
जी बिल्कुल, देखें इंटर बोर्ड के ख़राब नताइज पर जो है वो तलबा की बड़ी तादाद गुज़िश्ता 10 रोज़ से ज़ायद होने वाले हैं। सरापा एहतजाज है। इंटर बोर्ड के बाहर भी तलबा ने जो है वो एहतजाज किया, जिसके बाद आज जो है वो दोबारा ये कराची प्रेस क्लब के सामने जो है वो सरापा एहतजाज है। तलबा के साथ उनके वालिदैन भी मौजूद हैं। मरकज़ी मुस्लिम लीग के वफ़द भी यहाँ पर मौजूद है तलबा के हमरा, और उन्होंने भी जो है वो तलबा को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। उनका यही मुतालबा है कि हम जो है वो स्क्रूटनी नहीं कराएंगे, हमें शफाफ नताइज दिए जाएं। हमारे साथ कुछ तलबा भी मौजूद है, हम इनसे मज़ीद तफसीलात लेते हैं। बताइएगा मैट्रिक में क्या रिजल्ट था और अभी फर्स्ट ईयर में क्या रिजल्ट बने? मेरी मैट्रिक में 89% थी और अभी इन्होंने मुझे फर्स्ट ईयर में 15% और 4 सप्लियाँ दी हैं, जबकि मैंने फर्स्ट ईयर में पूरा अपना 100% दी है और इन्होंने 15% दी। और जब इनके पास हम एप्लीकेशन लेके जाते हैं तो ये कहते हैं मेरी एप्लीकेशन जमा नहीं हो रही, अब स्क्रूटनी कराओ। भाई हम स्क्रूटनी क्यों करवाएं? अब स्क्रूटनी में वापस से रिकाउंट करके हमें वापस नंबर दे देंगे। 1-2 नंबर चलने बढ़ भी जाए उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? 0.% से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 15% पे कोई भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हमें एडमिशन नहीं देगी, और अगर प्राइवेट में हम जाएंगे तो वहाँ पे 10 धक्के खाने पड़ेंगे, लाखों रुपए फीस जमा करानी पड़ेगी और सीट अलग से खरीदनी पड़ेगी और पर सेमेस्टर अलग जाएगा। आप खुद बताएं, जब मैट्रिक बोर्ड ऑफिस में नई मार्कशीट इशू हो रही हैं, वहाँ पर रीचेकिंग भी हो रही है, तो हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? आप बताओ कि 10 दिन से ज़्यादा हो गए एहतजाज कर रहे हो, कोई सूरत हाल नज़र आई, क्या लगता है और अब क्या मुतालबात हैं आप लोगों के? हर कोई तसल्लियाँ दे रहा है, अभी तक तो कोई ऐसा काम किया नहीं जा रहा, लेकिन हम जब तक एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे तक हमारा कोई सुनेगा नहीं। हमारे रिजल्ट दोबारा अनाउंस नहीं किए जाते। क्या कहेंगे, 10 दिन से एहतजाज कर रहे हो, अब क्या मुतालबात हैं? गुज़िश्ता 10 दिन से चूँकि हम देख रहे हैं बार बार आप लोग सड़कों पे आ जाते हैं, एहतजाज कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे, और जो है वो कोई आप लोगों को सूरत हाल नज़र आ रही है कि आप लोगों के लिए कुछ किया जाएगा? हम बस एक उम्मीद पे हम अपने हक़ की आवाज़ उठा रहे हैं। हम घर पे नहीं बैठे, हमें पता है कि हमने कितनी मेहनत करी है और हमारा फ्यूचर आगे क्या है। अब जैसा हमारा रिजल्ट आया है, हम तो बिल्कुल है ना रोड पे ही आ गए एक तरीके से, तो हम बस अपने हक़ की आवाज़ निकाल लें। हमारी उम्मीद पूरी बरकरार है। अभी 10 दिन हुए, 20 दिन भी लगेंगे, 30 दिन भी लगेंगे, हम बाहर खड़े रहेंगे, लेकिन जब तक हमें हक़ नहीं मिलेगा हम अपनी आवाज़ को बंद नहीं। अच्छा, एक जानिब स्क्रूटनी भी हो रही है, तो आप लोग स्क्रूटनी के अमल को कैसे समझते हैं? और अभी जो है वो एहतजाज कर रहे हैं आप लोग, तो स्क्रूटनी की तरफ क्यों नहीं जाना चाहते आप लोग? स्क्रूटनी एक तरह से ना बिल्कुल धोखा है। स्क्रूटनी में क्या है, 6 सब्जेक्ट है, उसके मार्क्स सिर्फ टोटल काउंट करके दे देते हैं। पेपर तो रीचेक हो नहीं रहे हमारे। अब हमें तो अपने पेपर का करना है कि उसको रीचेक करो, हमारा रिजल्ट वो है ही नहीं। एक बंदे को अंदाजा हो जाता है उसने क्या करा है, ठीक है, तो हम बोल रहे हैं हमारे पेपर रीचेक करे जाए, ये हमारा रिजल्ट नहीं है जो इन्होंने भेजा है, ये किसी और कॉपी का है या फिर इनका कोई मसला है। हमें है ना हमारा रिजल्ट वापस चाहिए। 9 में क्या रिजल्ट था, मैट्रिक में क्या था, और अब फर्स्ट ईयर में क्या रिजल्ट बना है आपका? 9 और मैट्रिक को मिला के मेरी 85% बनी थी। दैन अभी 20% बनी है मेरी फर्स्ट ईयर में। तो 20% पे क्या मैं एमकैट दे पाऊँगा? क्या एमकैट 20% मिल सकते हैं? गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मुझे मिल सकती है। और सीएम साहब जो बोल रहे हैं कि आप जो बच्चे फेल हो गए, उनके तो बच्चे बाहर मुल्क में पढ़ रहे हैं, अगर वो यहाँ कराची बोर्ड में एडमिशन करवाएं और उनका रिजल्ट ऐसा है तो उनका कैसा लगेगा? सीएम साहब से गुजारिश है हमें भी अपने बच्चों की तरह समझें, जैसे उनके बच्चे हैं वैसे ही हम हैं, तो और सबको एक बराबर देखें वो। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, हमारे साथ कराची प्रेस क्लब के बाहर जो है वो तलबा बड़ी तादाद में सरापा एहतजाज है, अपने हक़ के लिए जो है वो यहाँ पे आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इनका यही कहना है, तलबा के ये खदशात भी हैं, चूँकि इंटर के नताइज की बुनियाद पर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलता है, लेकिन 60% बच्चे जो हैं वो इस वक्त फर्स्ट ईयर में फ़ेल कर दिए गए हैं। मजमूई तादाद 70,000 बच्चों ने जो है वो पेपर्स दिए थे, जिनमें से जो है वो 60% को नाकाम करार दे दिया गया, और इनके यही खदशात है कि हमें यूनिवर्सिटियों में कैसे एडमिशन मिलेगा, यूनिवर्सिटीज़ में हम कैसे एडमिशन लेंगे, क्योंकि हमारे इंटर के नताइज में तो हमें फेल कर दिया गया है। इनके यही मुतालबात है कि इन नताइज को मनसूख किया जाए और जो है वो शफाफ नताइज इन्हें जो है वो फराहम किए जाएँ। जी, शफाफ नताइज फराहम किए जाएँ। बहुत शुक्रिया आयमा, आपने हमें अपडेट किया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सब्जी मंडी की पार्किंग में कब्जा माफिया का राज है। न्यू सब्जी मंडी के ताजिर सरापा एहतजाज बन गए। मजीद बताएंगे वसीम इफ्तिखार। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ सब्जी मंडी में, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सब्जी मंडी के ताजिर कारोबार करने के बजाय एहतजाज करने पर मजबूर हो गए हैं। बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं कि आप यहाँ पर ताजिर जो है वो सरापा एहतजाज हैं, और बुनियादी तौर पर वजूहत जो सामने आई है वो ये है कि सब्जी मंडी की जो पार्किंग है और बिलखुसूस सफाई प्लाट पर जो कब्जा माफिया कब्जा करने में मसरूफ़ हैं, और इस हवाले से यहाँ के ताजिरों में शदीद तशवीश पाई जाती है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है ताजिर रहनुमा मोहम्मद अफजल साहब, क्या वजूहात हैं? आप लोग जो एहतजाज कर रहे हैं, कौन कब्जा कर रहा है और आप लोगों का क्या मुतालबा है, और अगर मुतालबात मंजूर नहीं होते तो उस सूरत में आप लोगों का क्या लाएमल होगा? आप
खुद देख सकते हैं कि ये कितनी बड़ी तादाद में ताजिर एहतजाज कर रहे हैं। ये मंडी की वाहिद पार्किंग है और ये रफाई प्लाट है। पार्किंग रफाई प्लाट होता है और उसमें एक बार का आदमी आगे और वो कोर्ट की एज ले रहा है। कोर्ट की एज इस तरह ले रहा है कि C2 में उसको ऑर्डर हुआ है। C2 जो है ना वो सब्जी मंडी में ब्लॉक नंबर 2 है और यहाँ पे वो पार्किंग में इल्लीगल कब्जा कर रहा है और वो ये कह रहा है कि C2 ये है, यानी वो जिस जगह का तयन करेगा, फैसला करेगा, वो अपनी मर्जी से वो C2 हो जाएगा। हमारा मुतालबा और हमारा ऑब्जेक्शन ये है कि ये मंडी की वाहिद पार्किंग है, इसमें 15 से 20 हज़ार एम्प्टी गाड़ी डेली इन आउट होती है, 60-70 हज़ार आदमी राउंड द क्लॉक आता है। वाहिद पार्किंग है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी मंडी है। जी बिल्कुल, ये थे मोहम्मद अफजल जिन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि यहाँ पर एहतजाज हम लोग अलामती कर रहे हैं और सिर्फ इंतज़ामिया को सिर्फ ये बावर कराना है कि इस तमाम तरह मामलात में यहाँ के ताजिर सोए हुए नहीं हैं, कब्ज़ा किया जा रहा है जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है और इंतज़ामिया ने अगर इस मामलात को दुरुस्त नहीं किया और कब्ज़ा माफिया को उनको जो है वो दुरुस्त तरीके से उनकी जो है वो कार्रवाई नहीं की उनके खिलाफ, तो फिर यहाँ के ताजिर ना सिर्फ एहतजाज करेंगे बल्कि एहतजाजन हड़ताल के तौर पर मार्केट को बंद भी कर दिया जाएगा। जी 2006 में जमील को कत्ल करने वाले कातिल को 18 साल बाद सजा मिल गई। मजीद बताएंगे जवाद से। जी बिल्कुल, देखें 2006 में मकतूल जमील को कत्ल करने वाले कातिल को 18 साल बाद सज़ा मिल गई। सेशन अदालत गरबी ने मुलजिम इकबाल को उम्र कैद बामुशक्क़त की सज़ा सुनाते हुए उसे 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया है और ये भी हुक्म दिया है कि जुर्माने की अदम अदायगी पर उसे मज़ीद 6 महीने की कैद काटनी होगी। जबकि इस मुकदमे में एक नामजद मुलजिम क़य्यूम ताहाल मफरूर है। इस्तगासा के मुताबिक मुलजिमान ने मोटरसाइकिल पर आकर जमील और इसके दोस्तों पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में जमील जाँ बहक हुआ जबकि उसका दोस्त वसीम जख्मी हुआ था, जिसके बाद ये मुलजिमान मफरूर हो गए थे। और फिर 2021 में इस्तगासा के मुताबिक इन्होंने सिंध हाई कोर्ट में 15 साल बाद मफरूर रहने के बाद ज़मानत क़ब्ल गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर की, जिसे अदालत ने मुस्तरद करते हुए इन्हें जेल भेज दिया था। प्रोसिक्यूटर आरिफ सिताई के मुताबिक उन्होंने 6 से ज़ायद गवाहान अदालत में पेश किए हैं, जिन्हें जो है वो मुलजिम के वकील ने जिन पर जिरह भी की है, ताहम मुलजिम के हक़ में कोई भी बात सामने नहीं आई है। वाक़े का मुकदमा जो है वो थाना बल्दिया टाउन में दर्ज किया गया था। जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना इलेक्शन मंशूर जारी कर दिया है जिसमें तालीम, सेहत, अवामी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, रोजगार के नुकात शामिल हैं। मजीद बताएंगे आजिज़ जमाली। जी देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मंशूर का ऐलान तो कुछ दिन पहले किया था, लेकिन अब बाकायदा किताबी सूरत में इलेक्शन मंशूर जारी कर दिया गया है। 64 सफ़ात पर मुश्तमिल ये पीपल्स पार्टी का इलेक्शन मंशूर है, जिसमें तालीम, सेहत, रोजगार, अवामी हुकूक, खारजा पॉलिसी समेत दीगर उमूर की बात की गई है। इसमें एक एक नुक्ते पे कई सफ़ात हैं। ख़ास तौर पे खारजा पॉलिसी पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल कुछ नए पॉइंट्स दिए हैं। इसके अलावा पीपल्स बस सर्विस की बात की गई है अपने इलेक्शन मंशूर में, सेहत की बात की गई है और बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को जारी सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में भी बात की गई है। ठीक है आजिज़, आपने हमें अपडेट किया।